Okay guys, now I am going to discuss the question number 5 of the chapter 3.2. In this questions, the matrix A is given of 3 cross 3 order and matrix B is given as 3 cross 3 order. Okay, in this questions you have to find the value of 3A minus 5B. So for finding these values, we have to calculate first 3a and माइनस ऑफ 5b। जैसा कि मैंने आपको पहले ही आपने मैट्रिसेस के बुक में पढ़ रखा होगा, अगर किसी मैट्रिसेस को किसी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, लेट सपोज कि अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या है ए आई जे, ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, उसको अगर k से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस k को जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। देखो k a11 k a12 k a13 k a11 and so I can write down here k amn। तो जस्ट लाइक सपोज करो अपना मैट्रिक्स क्या है a 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 and 2/3। Now I am going to multiply it by 3, so 2/3 into 3 will become to 2 and 1 multiplied by 3 will become to 3, 5/3 multiplied by 3 will become to 5 and again 1/3 will become to 1, 2/3 into 3 will become to 2, 4/3 into 3 will become to 4, 7/3 into 3 will become to 7 and 2 into 3 कितना हो जाएगा 6, 2/3 into 3 कितना हो जाएगा 2। ऑर्डर कितना रहेगा अभी सेम ही रहेगा जितना पहले था 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, एडिशन फॉर्म में करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है -5b को कैलकुलेट किया है, सेम जैसा अभी मैंने ऊपर बताया कि इसको -5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी वाले मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर देखो, यहाँ पे कितना आएगा 2/5, -5 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा -5 एंड सो 3/5 will become to -3 and so 1 will become to -5 and so 1/5 will become to -1, 2/5 will become to -2, 4/5 will become to -4, 7/5 will become to -7, 6/5 will become to -6 and 2/5 will become to -2। Order will not change, order still will remain same 3 cross 3 order। Now you have to add 3a minus of 5b, it can be written as 3a plus matrices of minus of 5b। ओके, सो 3a को आपने कैलकुलेट कर लिया है, हाउ मच 2 3 5 1 2 4 एंड 7 6 2, राइट डाउन हियर जस्ट बिलो टू 3a प्लस -5b की जो मैट्रिसेस है उसको आप यहाँ पे राइट इसके जस्ट डाउन पे नोट कीजिए, कितना आएगा -2 -3 -5 -1 -2 -4 -7 -6 -2। सिंपली ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्सेस है, तो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके ऑर्डर मस्ट बी सेम। आप ऐड करके देखो, -2 plus 2 will become to 0, -3 plus 3 will become to 0 and -5 plus 5 will become to 0। In the same way, -1 plus 1 will become to 0, -2 and plus 2 will become to 0। In the same way again, -7 plus 7 will become to 0, -6 plus 6 will become to 0, -2 plus 2 will become to 0। So ultimately the value of 3a minus 5b will become, you will find a 3 cross 3, all elements are 0। This type of matrices is called null matrices। Okay, so now I am going to explain your next questions। Okay, now I am going to discuss question number 6।
So just see this question in your book. In the question given, cos theta multiplied by this matrix plus sin theta multiplied by this matrix. Now you have to find out the summation of the two matrices. Okay, तो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, किसी मैट्रिसेस को आप किसी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओके, so I am going to first multiply cos theta to this matrix. So what it will come, this will become to cos square theta, this will become to cos theta into sin theta, and this will become to minus sin theta into cos theta, and this will become again cos square theta, and order of this matrix will be 2 cross 2. In the same way, now I have to multiply it by sin theta to this matrices. So what it comes, it will become to sin square theta minus sin theta into cos theta, here sin theta into cos theta, here it will become to sin square theta, again 2 cross 2. Now add this matrix and this matrices. It can be added because both matrices have same order. So now add the corresponding element. Here is cos square theta and here is sin square theta. Add both identities, you will get sin square theta plus cos square theta. Now add cos theta plus sin theta minus sin theta into cos theta. The value is same, identity is same, but here is negative. So after adding both identity, you will get the zero values. Okay, in the same way here, sin theta into cos theta plus sin theta into cos theta, this one is negative, this one is positive. After adding these values, it will become to 0. Now cos square theta plus sin square theta को आप ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, sin square theta plus cos square theta. You know very well about the identity of sin square theta plus cos square theta. It will become to 1. In the same way here, sin square theta plus cos square theta again will become to 1. So this matrix can be reduced to 1 comma 0 0 1. Again that means कि here you are find a square matrix of order 2 cross 2. Okay, it can be said this is an identity matrix. Okay, now again I am going to explain your question, next questions. Now I am going to explain the question number 7 का second part. Okay, just see your book. Now here you have to find out the value of the matrix X and matrix Y. While there is an equation twice of matrix X plus 3 times of matrix Y is equal to a given of matrix order 2 cross 2 whose elements are 2, 3, 4 and 0. Okay, and again 3 times of matrix X plus 2 times of matrix Y is equal to an matrix whose order is 2 cross 2 and its elements are 2, -2, -1 and 5. ओके, तो सिंपली जैसे कि कभी हम इक्वेशन सॉल्व करते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस या y minus x is equal to 3. After that multiplying we have to find out the value of x and y. In the same way we are going to solve the matrices. Okay, so let's consider this is the first matrices and this is the second matrices. So I am going to multiply it by 3 to the first matrix. So what it will get the result, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, और 3 से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, this will become to 6, this will become to 9, this will become to 12, this will become to 0. That's why I have written here, after multiplying the first matrices with 3, 6x plus 9y
it will become to 6, 9, 12 and 0. Order will not be changed, 2 cross 2 ही रहेगा. ओके, एंड सेकंड मैट्रिक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया है. ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6x हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा. और इधर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 10. दैट्स वाई I have written here 6x plus 4y equals to 4 minus 2 and 10. अब क्या करेंगे? अभी मुझे एलिमिनेट करना है x वाली मैट्रिक्स को, जिससे कि अपने को y मैट्रिक्स मिल जाए. तो मैंने क्या किया? यहाँ पे माइनस साइन लगाया और इस मैट्रिक्स के आगे भी एक माइनस साइन लगा दिया है. ठीक है, अब ये 6x एंड 6x कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या अपने पास? 9y माइनस 4 टाइम्स ऑफ मैट्रिसेस y. सो इस मैट्रिक्स में भी आपको इसको ऐड कर देना है सिंपली. तो दिस मैट्रिक्स प्लस नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो व्हाट यू विल गेट? 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स y, 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स y एंड दिस मैट्रिक्स 6, 9, 12, 0 वाला मैट्रिक्स प्लस. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए मैंने इसको प्लस लगाया है. और ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है तो सारे अंदर की जो एलिमेंट्स है उसको नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? प्लस तो हो ही जाएगा. इधर जहाँ प्लस में था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव था वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था पॉजिटिव. अब सिंपली आप ऐड कर दो इसको तो आपको क्या मिलेगा? 6 माइनस 4 की वैल्यू 2, 9 प्लस 4 की वैल्यू 13, 12 प्लस 2 की वैल्यू 14, -10 और 0 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? -10. ओके, सो अभी मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ जिससे कि आपको क्लियर सॉल्यूशन आपको विजुलाइज हो. ओके, तो देखो हम लोग यहाँ से डिस्कस कर रहे थे कि जो 5 टाइम्स ऑफ 5 मैट्रिसेस की जो वैल्यू थी उन दोनों को आपने ऐड किया तो कितनी आई? एक मैट्रिक्स आई जिसके एलिमेंट्स कितने हैं? 2, 13, 14 -10. अब अपने को मैट्रिक्स ऑफ y की वैल्यू निकालनी है तो नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइडेड बाय 5. सो इट विल बिकम टू 1/5 multiply by the this matrices. So how much it will come to? Now 1/5 into 2, it will become to 2/5, and it will become to 13/5, and it will become to 14/5 and -10/5. So now this is the value of matrix y. In the same way you can find out the value of the matrix x. अब आपको मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऊपर ऑलरेडी इक्वेशन लिखा हुआ है 3x + 2y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आएगा? 3x इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स माइनस, अब माइनस के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा? प्लस लगा दूंगा और -2 टाइम्स ऑफ y लिखूंगा. क्यों लिखूंगा? मैंने आपको बताया कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, एडिशन होता है. तो अगेन दिस मैट्रिक्स को यहाँ लिख दिया मैंने. अब y मैट्रिक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है. ठीक है, और उसको -2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? -2y कैलकुलेट करना ना, तो यहाँ पे y मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है और -2y को जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम टू -4/5, -26/5, -28/5 एंड 20/5. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी. अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपको क्या करना है? ऐड करना है. तो ऐड करो, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा. जब इस मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो देखो 10 - 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 टाइम्स ऑफ x मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 5. अगेन इसको और इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? -10 एंड -26, तो मिलके वैल्यू आ जाएगी -36/5. अगेन आपको इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? -33/5. इसको
और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 45/5। तो आपने यहाँ से क्या देखा, 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x इक्वल टू एट ए गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे मैट्रिक्स x निकालना है तो सिंपली 1/3 से आप डिवाइड कर दो। तो 1/3 से डिवाइड करने का मतलब 1/3 से इस मैट्रिक्स को, सॉरी 3 से डिवाइड करने का मतलब 1/3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को आपको 1/3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So now it can be reduced to 2/5 minus 12/5 minus 11/5 and 15/5. Okay. Now I am going to discuss your next questions. So guys, your question number 8 and question number 10 and question number 11 and question number 12 are similar. Okay. You have to solve yourself. Now I am going to discuss your question number 9. So from question number 7 to question number 12 up to 12 I have solved only two questions. One is 7 and one is 9 because 7 to 12 are all mostly same. Okay. So now I am going to discuss question number 9. So this is a given, you have to find the value of the x, y in the given matrices. Here this is a 2 cross 2 order matrices plus this is again 2 cross 2 order matrices is equal to another matrix of 2 cross 2 order. Simply कुछ नहीं करना है आपको, इसमें इसमें एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया है इस वाले मैट्रिसेस को, तो जस्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 2 इंटू 3, सारे एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 6 0 एंड 2x। अगेन दिस इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसमें आप एक मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो जिसकी 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर है, सिंपली ऐड कर दो इसको। तो ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझे 2 प्लस वाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 और y को ऐड करोगे 2 प्लस वाई, 6 को ऐड करोगे 6, 0 को 1 में ऐड करोगे तो आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया है। यहाँ पे मुझे कितना लिखना चाहिए, this must be 1. Okay, so let me to erase it. So after addition it will become to 1. Okay, so now I have written here 1 and this will become to 2x plus 2 and this is equal to given of matrix 5 6 1 8. So what we will get here 2 प्लस, अब चूंकि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी मैट्रिक्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हियर यू विल गेट y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 and so you have to find out value of x, so you have to equate 2x plus 2 is equal to 8. Okay, so how much 2x plus 2 is equal to 8, x is equal to 6 by 2 and it will become to 3. Your answer is finished. Now I am going to solve your next question number 13. Guys, now I'm going to solve your question number 13. So please check your books. In question number 13, there is a matrix as a function of x. So let's fx is a matrix whose elements are cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 0 1 and order of this matrix is 3 cross 3. You have to prove f of x plus y equals to fx dot fy, means कि f of x plus y must be equal to the multiply by fx
sorry, multiply of fx and fy. Okay, so first we have to make a matrix just like fx, but its input, yeah, its element must be in terms of y. That's why I can write here a matrix as a function of y, cos of y minus sin of y, 0, sin of y, cos of y, 0, 0, 0, 1, and the order will be 3 cross 3. ओके, बिकॉज एफ ऑफ एक्स की जो मैट्रिक्स है वो गिवन है, इसी के करस्पॉन्डिंग आई कैन राइट हियर एफ वाई. ओके, नाउ आई हैव टू शो एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई. तो फर्स्ट दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको इधर, मैं इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो यहाँ पे इसी वजह से, ठीक है कोई बात नहीं, सही है. अब देखो दोनों की ऑर्डर कितने हैं, 3 क्रॉस 3, मतलब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है. तो ये इसका कॉलम इसका रो यहाँ से कैंसिल होंगे. अगेन मुझे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलनी चाहिए. अब मुझे प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि जो मैट्रिक्स मिले वो मुझे कैसा मिले. जैसे यहाँ पे एफ एक्स था, कॉस एक्स था, साइन एक्स था, जीरो था, साइन एक्स था, कॉस एक्स था, जीरो था, जीरो. ऐसे जब हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के एलिमेंट्स की बनाएंगे या फाइंड आउट करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो अपने पास जो मैट्रिक्स आनी चाहिए रिजल्टेंट, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो, अगेन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो, 0, 0, 1, ऐसी ही फॉर्म में आनी चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यानी कि एफ एक्स मैट्रिक्स को और एफ आई मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. अब मल्टीप्लाई करने का आपको सीधा सा फंडा है, फर्स्ट रो को पकड़ो, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो. तो देखो आपको क्या वैल्यूज मिलने वाले हैं यहाँ पे. एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा अपने स्क्रीन को और एडजस्ट करता हूँ जिससे कि आपको सारे एलिमेंट्स अच्छे तरीके से विजुलाइज हों. तो देखो ये यहाँ से आपको सारे एलिमेंट्स विजुलाइज होने लगे होंगे मेरे ख्याल से. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स मैट्रिक्स को एफ वाई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ. तो मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या मिलेगा मुझे. मैंने अभी बताया आपको मल्टीप्लाई का रूल, शायद मेरे पिछले वीडियो में आप देखोगे, उसमें मैंने आपको अच्छे से बता रखा है. तो आई एम गोइंग टू जस्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट. ओके, नाउ आई हैव टेकन फर्स्ट रो एंड मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट कॉलम. तो इट विल बिकम टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई एंड जीरो इंटू जीरो, इन सबको ऐड कर दिया. तो दैट्स वाई आई विल गेट द कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई. ओके, नाउ अगेन दिस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ. तो क्या मिलेगा रिजल्ट, माइनस ऑफ साइन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ओके, एंड साइन एक्स माइनस कॉस वाई. दोनों में नेगेटिव क्वांटिटी है इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी बाहर ले लिया है, और कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई लिख दिया है. ओके, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से. अब देखो जब मैंने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलने वाला है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो cos x इंटू जीरो की वैल्यू जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो की वैल्यू जीरो, और जीरो वन से मल्टीप्लाई करोगे जीरो. ठीक, इन द सेम वे आई विल मल्टीप्लाई द सेकंड रो to first column, second column, third column as such, but you have, I think you are familiar with the multiplication rule of the matrices, so I am going to just uh, whatever I have write down here the value of. So now this will become the sin x into cos y, sin x into cos y, cos x into sin y, and this will become to 0. So sin x into cos y plus cos x into sin y, and so corresponding this element can be write down here minus of sin x into sin y plus cos x into cos y. ओके, सो अगेन जब आप इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो,
एंड 0 × 1। सो इन सब समेशन करोगे इन सारे वैल्यूज को, क्या मिलेगा? 0। अब आपको थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 0 0 एंड 0, सबको ऐड कर दो, क्या आएगा? 0। अगेन इस थर्ड रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? 0 × sin y 0, 0 × cos y 0 एंड 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0, सबका समेशन क्या आएगा? 0 आएगा। अब थर्ड रो को फिर लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को अगेन 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 1। अब देखो, अब अगर आपने ट्रायगोनोमेट्रिक के चैप्टर से कुछ आइडेंटिटीज पढ़ रखे होंगे तो यहाँ से आपको विजुअलाइजेशन शुरू हो जाएगा। दिस इज रिटन एज cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई। सो प्लीज check your identity of trigonometric book, okay, and learn the formula. Here minus of cos x into sin y plus sin x into sin y, this element is also trigonometric expression, and this is the expression of sin of x plus y. Already minus sign take यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी आपको लगा हुआ है, सो आई कैन राइट डाउन हियर माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। सो आपने क्या देखा, ये और ये की आइडेंटिटी सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इट कैन बी अगेन राइट डाउन हियर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। इन द सेम वे दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज सेम। देखो यहाँ पे भी वही लिखा cos x इंटू कॉस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई, जैसा कि यहाँ पे लिखा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। दिस इज ऑल्सो द अगेन एक्सप्रेशन ऑफ cos ऑफ x प्लस वाई, and there should be no change in 0 0 0 1. So you are getting the एक resultant matrix आपको मिल गया cos of x plus y minus sin of x plus y 0 sin of x plus y. So it is written as like of f of x plus y. So आपका आंसर फाइनल हो गया। वॉट एवर यू वांट टू, जो आप चाहते थे f of x plus y is equal to matrix of fx dot matrix of fy. Okay, so now I'm going to discuss your next questions. So this is your question number 14. Here you have to show that this matrix multiplied by this matrix does not equal to a resultant matrix of the multiplication of this matrix. So let us consider this is A matrix of the given order 2 cross 2, and this is the B matrix of the given order 2 cross 2, and this is the matrix of C, and this is the matrix of D. It is also 2 cross 2 order, it is also 2 cross 2 order. So हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें जिसका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जिसका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, और वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने को यही दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, एलएचएस साइड के जो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इनका फर्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो देखो मल्टीप्लिकेशन कब निकाला जा सकता है, पहली बात तो दोनों मैट्रिसेस के क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ए का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, सो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इस कॉलम यहाँ पे जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज हैं, यही एक कंडीशन है। दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड कॉलम, जो कि इस वैलिड इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे मुझे 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स मिलेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो को पकड़ता हूँ और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो करो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 एंड -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -3, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 7। फिर इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड -1 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -4। 5 और -4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ओके, अब क्या करते हैं, सेकंड रो को पकड़ते हैं और इसके फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में
इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12 एंड 7 3 ज़ा 21, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 33। ओके 33 आएगा। और अगेन 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हो गया। अब क्या करोगे, इस वाले को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके देखो, दिस विल बिकम टू 6, दिस विल बिकम टू 28, 28 एंड प्लस 6 कितना हो जाएगा 34 ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। इन द सेम वे यू कैन मल्टीप्लाई बाय द यू कैन मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ऑफ सी इनटू मैट्रिक्स ऑफ डी। मैंने तो कैलकुलेट करके लिख दिया, आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से आ चुका होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सी एंड मैट्रिसेस डी यू आर गेटिंग द this matrix of the 2 cross 2 order, but here you are seeing that after multiplication a dot b and multiplication of c dot b दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अब मैट्रिक्स के इक्वल होने की क्या कंडीशंस हैं कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब देखो इसका जो इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स है, यानी a11 a12 a21 a22, in the same way here a11 a12 a21 and a22 are not same, ठीक है, और not same. So LHS and RHS have same order of matrices, that is 2 cross 2, but corresponding element of a dot b यानी इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है वो और सी डॉट बी को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आया और नॉट सेम, दैट्स व्हाई LHS आर डज नॉट इक्वल टू RHS. Okay, so I am going to your next question. So I am going to discuss your question number 15. Okay, so what is the question 15? A matrix is given of 3 cross 3 order and its nomination is given as matrices A. Now you have to find out the value of a square minus 5a plus 6i. ठीक है, so first we have to calculate a square minus 5a plus 6i. इन सबको फिर क्या करना है, अपने को ऐड करके कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एडिशन करोगे तो मैट्रिसेस ही मिलेगा, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक मैट्रिसेस ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं -5a को कैलकुलेट कर रहा हूँ। -5a का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए को मैं किसी स्केलर क्वांटिटी -5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो -5 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है वो आपके सामने ये वाली मैट्रिक्स मिली है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। ठीक, -5a आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, आपने एक बार मैट्रिक्स ए लिखा जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, अगेन इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ कॉलम हियर 3 एंड नंबर ऑफ रोज हियर 3, तो दोनों इक्वल हैं। इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। सो मल्टीप्लिकेशन का सीधा सा फंडा है, फर्स्ट रो को उठाओ, इसके फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, फिर उसको ऐड कर दो, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सबको ऐड कर दो, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो। तो उसी प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है वो कितना आया है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। ए स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ, आई का क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया 6 से। सो आई हैव परफॉर्म द 6i। सो 6 को मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने 3 क्रॉस 3 क्यों लिया, क्योंकि देखो ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा आपने, क्यों, तो एक मैट्रिक्स मिला होगा जिसका ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 3, इसका जो ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, उसमें आप एक मैट्रिक्स 6i ऐड करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली उसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए 3 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। इसीलिए मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दिया, ये भी आ गया। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है।
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब आपको पता है डायरेक्टली यहाँ माइनस लगा है तो अपन कभी भी मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करते, एडिशन के फॉर्म में ही करना पड़ता है। तो ए स्क्वायर प्लस प्लस लगा के ब्रैकेट के अंदर -5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस 6i। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दो, जो आपने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया था वो वैल्यू पुट कर दो, -5 वाली जो वैल्यू पुट अब आपने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे कर दो, और 6i की जो वैल्यू है वो आप भी कर सकते हो। तो देखो मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट किया, -5i की वैल्यू पुट किया, 6i को भी पुट नहीं किया, एज इट इज रखा है, बट इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने पे आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। यहाँ -10 है, यहाँ 5 है, दोनों को ऐड करोगे -5, हियर -1 एंड 0, दोनों को ऐड करोगे -1, हियर 2 एंड -5 को ऐड करोगे -3। इन द सेम वे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड रो एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड रो। आपने इसको ऐड करके ये सारी वैल्यू मैट्रिसेस की आ गई। अब इसमें आपने 6i ऐड किया है, ठीक है, ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ रही वैल्यू, 1 -1 3 -1 -1 -10 -5 4 4, दिस इज योर वैल्यू। ठीक है, बेसिकली बस दो ही प्रिंसिपल है, आपको एडिशन रूल पता होना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन रूल पता। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। अगर इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से इसमें इतनी कोई टफ वाली बात नहीं है, आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। So I will solve your next question. So I am going to solve your question number 18. Okay. So आपके क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक मैट्रिसेस है ए मैट्रिसेस जिसके एलिमेंट्स हैं 0 -tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। ओके, एंड आपको इस क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है जिस कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 की। तो मैंने उसी के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख दिया। अब आपको एक्चुअली इस प्रॉब्लम में करना क्या था, आपको आप शायद अपने बुक ओपन कीजिए, उसमें लिखा होगा शो दैट i प्लस ए इक्वल्स टू i माइनस ए इंटू मैट्रिसेस ऑफ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। ओके, सो मैं उसी चीज़ को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, i प्लस ए की वैल्यू। मैंने यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को नहीं लिखा, पूरे क्वेश्चंस को नहीं लिखा, बस उसके डेटा लिख करके आगे के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना शुरू कर दे रहा हूँ, बट प्लीज़ चेक योर बुक। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट i प्लस ए, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट i प्लस ए। अब i प्लस ए में देखो दोनों ऑर्डर की मैट्रिक्स की, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या है, सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक, यही कंडीशन है एडिशन की। अब एडिशन करना है तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर दो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ऐड करने पे 1 आ जाएगी। -tan अल्फा बाई 2 को 0 में ऐड करोगे -tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और tan अल्फा बाई 2 को 0 में ऐड करोगे tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है। आपने ऐड कर लिया, i प्लस ए की वैल्यू आ गई, इट्स ओके। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i माइनस ए। आपको सिंपली पता है कभी भी डायरेक्टली निगेटिव सब्ट्रैक्शन नहीं होता, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैट्रिसेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिसेस लिख देता हूँ प्लस निगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए। कैलकुलेट करो, इनको ऐड करो। तो मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, और नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए का मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिसेस ए था उसके सारे एलिमेंट्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, ये तो जीरो रहेगा, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड करो, ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। अगेन ऑर्डर कितना रहेगा 2 क्रॉस 2। इसको मैंने एक सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड में मुझे ये दे रखा है प्रूफ करने के लिए कि दिस इक्वल टू दिस। तो अब राइट हैंड साइड से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है, i माइनस ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, i माइनस है क्या एक्चुअली, i माइनस ए को जब आपने कैलकुलेट किया तो आपको क्या मिला, एक मैट्रिक्स जी तो मिला है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ i माइनस ए क्या होगा, एक मैट्रिसेस होगा। इसको एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्या है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सारे वैल्यूज पुट करो। पहले तो मैट्रिसेस i माइनस ए लिखेंगे, i माइनस ए आपने कैलकुलेट कर लिया, 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब बार बार मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल नहीं बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि वीडियो पर लेंदी होने लगता है। सो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, आप लोग को मल्टीप्लिकेशन के रूल्स
आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेम है, इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम और इस मैट्रिक्स का सेकंड रो सेम है, तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, मतलब पॉसिबल क्या, कंफर्म ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, फर्स्ट रो को उठाओ, पहले फर्स्ट कॉलम से करो, फिर फर्स्ट रो को उठाओ, फिर सेकंड कॉलम से करो, एंड सो सेकंड कॉलम को उठाओ, फर्स्ट कॉलम से करो, सेकंड कॉलम को उठाओ, सेकंड कॉलम से करो। ये सारी बातें करके मैंने कैलकुलेशंस किया यहाँ पे, तो जो मेरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है वो ये आया है। आप भी नोट कर लो अगर पेन पेंसिल है तो, मेरा फाइनल मैट्रिक्स ये आया। अब इसके आगे की कैलकुलेशन, तो देखो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया था वो ये आया था। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड सो। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, देखो जो वैल्यू, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है ट्रायगोनोमेट्रिक का, सेम एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट उसका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे लिखा। तो मैं क्या करता हूँ, एक आइडेंटिटी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ और एक आइडेंटिटी मैं आपका इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो जैसे इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेट करते, देखो यहाँ पे लिखा है, मैं इसको पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने का देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस अल्फा को मैं लिख दूंगा इधर वन माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक, जैसे आप कॉस टू अल्फा में लिखते थे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, इन द सेम फैशन आई कैन राइट डाउन हियर कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। tan अल्फा बाई टू को लिख सकता हूँ tan साइन अल्फा बाई टू अपन कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा को आप लिख सकते हो टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो इसमें आप देखो एक एक्सप्रेशन यहाँ से कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब इधर क्या बचेगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू और साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा सिर्फ वन। दैट्स वाई डायरेक्टली आई हैव कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू वन। इन द सेम वे tan अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा को कैलकुलेट किया, कुछ नहीं किया मैंने, tan अल्फा बाई टू को साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू में कन्वर्ट किया, कॉस अल्फा को मैंने क्या लिखा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन लिख दिया। ठीक, और जो साइन अल्फा है उसको मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। अब क्या होगा, कॉस अल्फा से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मैंने अच्छा कॉस अल्फा से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और साइन अल्फा दोनों साइड कॉमन है तो मैंने बाहर ले लिया, तो साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा इधर, अंदर क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, और इस कॉस अल्फा से इस कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। अब देखो यहाँ से ये नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस वन इंटू साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। तो अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई थी वन, तो यहाँ पे भी वन हो जाएगा यहाँ पे भी वन हो जाएगा, दोनों सेम है ना, तो वन और वन हो गया। देखो ये एक्सप्रेशन सेम है बस एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसकी इसको मैंने कैलकुलेट किया कितना आया माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो ये वाला क्या है इसके जस्ट नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू। तो दैट्स वाई आपका जो एक्सप्रेशन आ गया आई प्लस ए, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर योर क्वेश्चन नंबर I am going to discuss your question number 19. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग अपने बुक में पढ़ो और उसको मैं बता दे रहा हूँ कि एक सर्टेन अमाउंट को टू बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है और उस बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज है कि उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो देखो दो बातें हैं, बॉन्ड वर्सेस इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अलग अलग बॉन्ड में कितना करना है उसको मैं मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ। ठीक है, बॉन्ड वर्सेस इन्वेस्टमेंट का एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसको मैं ए बोलूंगा, दूसरा बॉन्ड वर्सेस इंटरेस्ट बनाऊंगा जिसको मैं मैट्रिक्स बी बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो बॉन्ड मैंने कंसिडर किए, बी वन बॉन्ड एंड बी टू बॉन्ड,
उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक रो में मैंने क्या कंसिडर किया है, इन्वेस्टमेंट। रो में मैंने क्या कंसिडर किया है, इन्वेस्टमेंट। कॉलम में मैंने क्या किया है, बॉन्ड। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट ये दिखा रहा है, फर्स्ट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट कितना किया, लेट अस सपोज एक्स। तो दूसरे बॉन्ड में मुझे कितना करना पड़ेगा, 30,000 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में ले रखा है, इसलिए 5/100 नहीं लिखा, वो बाद में लिख दूंगा। ठीक है। बी टू बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, देखो दो कॉलम है और रो कितने हैं, 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना लिख देंगे, 1x2। इस मैट्रिक्स में रो कितने बनेंगे, 2। ऑर्डर रो कितना बनेगा, सॉरी कॉलम कितना बनेगा, 1। तो यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 2। इस मैट्रिक्स का रो कितना है, 2। तो रो और कॉलम सेम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो मुझे फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, 1x1। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में इसके फर्स्ट रो को उठाओ और इसमें कॉलम ही कितने हैं, एक ही कॉलम है, उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस विल बिकम टू 5 इंटू एक्स, या x इंटू 5 कर लो, 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई करो। अब आपके बुक में दो पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि ये इंटरेस्ट निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है, इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट हमारा कितना हो, 1800 हो। मैंने यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाई 100 क्यों लिखा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना ये परसेंट में था। तो जब भी आप परसेंट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5/100 ही तो लिखोगे। मैंने यहाँ पे 100 नहीं लिखा था, आई कैन राइट डाउन हियर, बट मैंने कैलकुलेशन की वजह से यहाँ लिख दिया। 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 15,000। ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 15,000। तो x वाला मनी मैंने किस किस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, B1 बॉन्ड में। इसका मतलब जो 30,000 मेरे पास था उसमें से 15,000 मैंने B1 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। रिमेनिंग जो 15,000 बनेगा वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, B2 बॉन्ड में। इसी का दूसरा केस क्या है, आप वो देख लो। ठीक है। इसी का दूसरा केस देखो, आपने क्या दे रखा हुआ है इसमें। इसमें दे रखा हुआ है कि अगर ये वाला इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाए, 2000 हो जाए, तो इन द सेम फैशन आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अगेन x की वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी आएगी, 5000। अच्छा, आपने जो x कंसिडर रखा कौन से बॉन्ड के लिए, B1 बॉन्ड के लिए। तो अगर B1 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 5000, तो B2 बॉन्ड में कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है। दिस क्वेश्चन इज हैज बीन सॉल्व। आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है, जस्ट लाइक 19, जस्ट लाइक 19। सो आई एम ऑल्सो, चलो उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। ओके। सो आपका क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने बुक में पढ़ें। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो आपके बुक में दो बातें हैं, बुक नेम वर्सेस क्वांटिटी। मतलब केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है और इकोनॉमिक्स की बुक है, और उनकी कितनी क्वांटिटीज़ हैं। तो मैंने क्या किया, बुक्स नेम को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से क्वांटिटी और बुक्स नेम के करस्पॉन्डिंग जो एंटिटी आएगी वो बता रही है कि यहाँ पे किस बुक की कितनी क्वांटिटी है। ठीक है। तो केमिस्ट्री की कितनी क्वांटिटी है, केमिस्ट्री वाले बुक की 120 है। फिजिक्स वाले बुक की क्वांटिटी कितनी है, 96। एक्चुअली वहाँ पे आपके डजन में होगा, मैंने इसको डजन में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में बोला 10 डजन, 10 डजन का मतलब 10 इंटू 12, 120, 120 बुक हो जाएगा। ठीक है। एंड फिजिक्स की जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 डजन, 8 डजन इज करस्पॉन्डिंग टू 96। एंड इकोनॉमिक्स की बुक को लिखा हुआ है 10 डजन, 10 डजन इज करस्पॉन्डिंग टू 120। ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। सो अगेन जो सेकंड मैट्रिक्स बनेगा, बुक्स नेम वर्सेस प्राइस। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर मिला मेरे को 1x3 का। ठीक है।
तो जो मुझे मैट्रिक्स बनाऊंगा इस तरीके से बनाऊं कि इसका जो कॉलम है वो यहाँ पे एज ए रो के फॉर्म में यानी नंबर ऑफ रोज सेम हो। तो मैंने क्या किया, जो यहाँ कॉलम था उसी को यहाँ पे रो में कन्वर्ट किया। तो हमारा बुक नेम्स जो है उसको मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया और हर बुक के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आ रहा है केमिस्ट्री की प्राइस कितनी है 80 पर बुक। ठीक है, और इसकी कितनी है 60, इसकी कितनी है 40 इकोनॉमिक्स की। तो अब सीधा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक आ जाएगा जो सेलर को पे करना पड़ेगा या सेलर को रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप सेलर को पे करोगे या यूँ कह लो कि आप सेलर जो रिसीव करेगा। तो ए डॉट बी पॉसिबल भी है क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं उतने ही यहाँ पे रोज है। सीधा फंडा मल्टीप्लाई को, इस रो को पकड़ो, इसके एक ही कॉलम है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, I have already calculated it. So net amount is coming to around 20160. This is the amount which seller will receive. Okay. Now your last question is 21 and 22. Okay. क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 दोनों को एक ही जगह पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ और उसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में कॉमन क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है x जिसके एलिमेंट्स क्या है एक्स आई जे, ऑर्डर कितना 2 क्रॉस n। इन द सेम वे y है जिसके एलिमेंट्स वाई जे हैं, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस के। z एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस p है एंड w एक मैट्रिक्स है n क्रॉस 3 है, p एक मैट्रिक्स है p क्रॉस k है। आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है आपके यहाँ एन के पी की क्या रिलेशनशिप है या क्या वैल्यूज होंगे उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, यानी कि मैं पी मैट्रिक्स को वाई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं और डब्ल्यू को वाई के साथ मल्टीप्लाई करूं और फिर दोनों को एडिशन करूं। तो उसी करस्पॉन्डिंग आपके जो एन के पी के कुछ रिलेशनशिप निकालने हैं उसी चीज़ को निकालता हूं। तो पहले देखो मुझे पी वाई कैलकुलेट करता हूं। अब यहाँ पे पी की ऑर्डर कितना है, देखो पी का ऑर्डर कितना है पी क्रॉस के। ओके, और वाई की ऑर्डर, वाई मैट्रिक्स है उसका कितना ऑर्डर है 3 क्रॉस के। अब दो मैट्रिक्सों को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो कंडीशंस क्या होती थी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है पी है, सेकंड मैट्रिक्स क्या है वाई है। तो डेफिनेटली फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम जो होना चाहिए वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल्स होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको सेटिस्फाइड करूंगा तो मतलब पी वाई पहले कैलकुलेट करूंगा और पी वाई कैलकुलेट करने के लिए यानी कि पी को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो पी को वाई से तभी मल्टीप्लाई कर सकता हूं जब पी के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू वाई के नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम पी का कितना है के, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इन वाई कितना है 3। तो डेफिनेटली पी वाई तभी पॉसिबल होगा जब के की वैल्यू क्या हो 3 होगी। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा पी क्रॉस के। तो आपका एक चीज तो क्लियर हो गया, के की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। अब देखो डब्ल्यू वाई कैलकुलेट करो। तो डब्ल्यू वाई भी कैलकुलेट करने के लिए वही फंडा कि भाई डब्ल्यू के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो वाई के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, जो कि है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है। तो यहाँ पे डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा एन क्रॉस के ऑर्डर का मिलेगा। ठीक, ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे हो पी वाई और डब्ल्यू वाई को। तो देखो पी वाई का ऑर्डर रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आया पी वाई को कैलकुलेट करने पे पी क्रॉस के ऑर्डर की होगी और डब्ल्यू वाई का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा एन क्रॉस के ऑर्डर की होगी। अब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करने जा रहे हो, कौन कौन से दो मैट्रिक्स, पी वाई का मैट्रिक्स ये है, डब्ल्यू वाई का मैट्रिक्स ये है। इन दोनों को ऐड कब कर सकते हो जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो मतलब क्या था कि P क्रॉस के इंटू सॉरी P क्रॉस के की वैल्यू N क्रॉस के वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर आएगा
एन की वैल्यू पी होगी तभी तो बराबर होगी। भाई दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हो जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो भाई यहाँ पे डब्ल्यू वाई के ऑर्डर एन क्रॉस के है और यहाँ पे पी वाई के ऑर्डर पी क्रॉस के, और इन दोनों को ऑर्डर सेम होने के लिए मुझे एन को पी के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी, एन की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, पी। सो आई थिंक इन दिस, इन योर बुक ऑप्शन नंबर ए is correct where k is equal to 3 and p is equal to n. That's why I have strict the n is equal to p and k is equal to 3। जहाँ पे ये ऑप्शन आपको नजर आए वहाँ पे टिक कर देना। मेरे हिसाब से आपके बुक में क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, ठीक है। अब इसी का एक सेकंड पार्ट कह लो या क्वेश्चन नंबर 22 कह लो, उसको आप देख लो, मैं बता रहा हूँ उसमें क्या कंडीशन है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आप देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो एक मैट्रिक्स एक्स है जिसके एलिमेंट एक्स आई जे है, ऑर्डर कितना 2 क्रॉस एन है, ठीक है। आपको बताना है 7x माइनस 5z के कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, आपको ये बताना है। बट कंडीशन इज गिवन दैट p इज इक्वल टू n। थोड़ा सा बुक आप अपना पढ़ लेना, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है x इज इक्वल टू एक्स आई जे जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n। तो आप 7x निकालोगे, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर तो नहीं चेंज होगा ना, सिर्फ अंदर के एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे किसी टाइम पे किसी एलिमेंट की वैल्यू 1 थी, उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करो 7 हो जाएगी, बट ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज। तो ऑर्डर स्टिल विल रिमेन आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, इन द सेम वे जेड एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या है, एलिमेंट्स क्या है जेड आई जे, ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस पी। उसको आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एलिमेंट्स के सारे अंदर के एलिमेंट्स को -5 से मल्टीप्लाई होगा, बट ऑर्डर शुड नॉट बी चेंज, ठीक। बट जब आप इस मैट्रिक्स को ऐड करोगे 7x मैट्रिक्स को -5z मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तो दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, उनका ऑर्डर सेम हो। अब आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है कि p इज इक्वल टू n, है ना, p इज इक्वल टू n। तो जब इनको ऐड करोगे तो ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस n आएगा। दिस इज योर फाइनल, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो गाइज चैप्टर आपका फिनिश हो गया है 3.2। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है।